Okay. So I can hear from some participants who are sick and tired and are looking for a unique solution. So we all know that painkiller is not the solution. Yes or no? Painkiller hum log majburi mein khate. Can anybody tell me what are the side effects of taking painkiller in the long run? Okay, Usha ma'am writes to me, I'm sick of painkillers. Yes, we all know that. But the thing is, are we looking for a solution? Are we willing to work hard on ourselves? क्या हम अपने पे काम करने को तैयार हैं? क्या हमने अपना mind change करना है? Can we look for solutions other than allopathy and other than the shortcut solutions? कितने लोग तैयार हैं अपने आप के ऊपर काम करने के लिए? Give me a thumbs up. Today evening, how many people are ready to take charge of their neuromuscular health? Nikki ma'am, Arya ma'am, Kiran ma'am, Sonal ma'am, please switch on your video. Let's make it a very interactive session. We want to communicate with you. We want to know what problems you are suffering from. Please write down in the chat box. I'll just give you an overview of the webinar. Okay, so if you give me your permission, should I share the screen as to what this webinar is, a brief about it, then we will take it forward. Have I got your permission? Yes or no? Okay, so I'll just share with you. Just give me 2 minutes. I will share the details with you. Something about the webinar. Okay, so okay, can everybody see the screen? Give me a thumbs up. Can everybody, Geeta ma'am, Chitra ma'am, सबको दिखाई दे रहा है? Am I audible and visible to everybody? Please write down your name and number so that we can get back to you. Okay. So Ashtang Chikitsa online therapy. Ashtang Chikitsa. क्या आपके दिमाग में क्या समझ में आता है? अष्टांग, कुछ पुरानी चीजें जो हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग थक गए हैं दवाई खाते खाते, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. So here we are from Avisa Healing Private Limited. My name Rachna Bothra, trying to revive. पुरानी चीजें हम रिवाइव कर रहे हैं ताकि लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, उनको फ्रीडम फ्रॉम पेन मिले, freedom from medicine mile. Okay, so in today's webinar we will present to you a unique therapy for curing the pains that you or someone in your family is suffering from and have tried many techniques and therapies, spent a lot of money, time and energy, but with no result. So what this webinar is all about, it's an introduction to the paid online course, Kumbhak Therapy Solution. So we will be sharing the course details soon after Swami Raj Vibhu's recorded session. Some of the problems, very few that we could list here. There are many more problems that we heal through Ashtang Chikitsa. Some of them are osteoarthritis, which is not anymore a disease of the retired people or post-60. We see it among the people of the 30s, and in the youngest participant in our Ashtang Chikitsa program, you will not believe it is just 25. Just the beginning of the youthful life, and people are suffering from osteoarthritis. What is this world coming to? Are we all shocked to hear this? Yes or no? Rheumatic arthritis, एक autoimmune disease जिसका कोई solution डॉक्टर के पास नहीं है, आपको सिर्फ मैनेज करना है. Okay,
So we are taking care of rheumatic arthritis, frozen shoulders, cervical issues, dropping foot, slip disc, muscular dystrophy, another very big problem which has no solution, no cure in allopathy. So we are trying to reverse the neuromuscular problems with Kumbhak, freedom from pain, freedom from medicine. So what is the solution? आप सबको जानने की बड़ी उत्सुकता होगी कि क्या solution हम provide करेंगे. We are trying to strengthen the exchange or the transport mechanism with your natural triggers. You will be building up your functional strength. आप खुद के ऊपर खुद ही काम करोगे, guided by Swami Ji. Okay? So there is nothing but your own body that you're working on, which is so powerful that you can't even believe it. कि solution सब आपके अंदर होता है, आपको बस ढूंढना है और हमें आपको guide करना है. Okay? So we are trying to address the musculoskeletal system and the structure of the human body, how it can function at its best. That is our purpose at Avisa Healing and Fitness, a profound way of addressing the structural aspects of a human body. So now, without much delay, I know you all are awaiting the session on Ashtang Chikitsa. So I will just give you a brief introduction of Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. He has been transforming lives of thousands of people in India, Europe, and USA who have not found any relief even after years of using allopathic medicine. So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. And we are lucky to have him here to solve the neuromuscular issues. Okay? So I stop sharing the screen here. Please write down your name and numbers so that we can get back to you. And here, I'll just give you a brief for how we are going to proceed for the webinar. Here we start the recorded session. After that, Anilji will be sharing the details of the Ashtang Chikitsa online course. And then we will have a session live with Swamiji about the questions which is coming to your mind. Please note it down so that at the end of the session, you can share your questions live with Swamiji and get them answered. Thank you so much. Namaste. And here we start the recorded session. Anilji, please share the recorded session. Yes, just a second. Yes. सब लोग आराम से बैठ जाएं. So, Ashtanga Chikitsa, when we say Ashtanga Chikitsa, first of all, I'll tell you how to come out of a problem, right? But the way we are approaching a neuromuscular or skeletal problem, जिस तरीके से हम arthritis, rheumatoid arthritis, cervical, slip disc, knee pain, lower back pain, frozen shoulder, tennis elbow, the way we are approaching these problems, what at present we are trying to do is just cutting off the pain. अभी हम क्या कर रहे हैं? Pain cut off कर रहे हैं ना? Is there anything else that we are doing? इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं. What maximum doctor tells you? घुटने खराब हो गए तो घुटने बदलवा लो. Yes or no? है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे. कुछ लोगों को इंग्लिश चाहिए, कुछ लोगों को हिंदी चाहिए, तो दोनों में बात करेंगे. ठीक है ना? अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां कुछ मशीन, कुछ आर्टिफिशियल लगवा लो, यही कहते हैं ना. और वो घुटने बदलवाने के बाद परेशानी कम होती है, बढ़ जाती है? परेशानी बढ़ जाती है. किसी भी की भी परेशानी जल्दी ठीक नहीं होती है. सो इज दैट द सोल्यूशन? क्या वो सोल्यूशन है इसका? हमें सोल्यूशन ढूंढना है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे सोल्यूशन मिलेगा.
यू विल हैव टू पे लिटिल अटेंशन, थोड़ा समझना पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग ना अलग तरीके से हुई, तो आपको थोड़ा सा ओपन रखना, जस्ट ओपन अप योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ ओपन एंड यू विल फाइंड अ सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन मिलेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, एक कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं ना, एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम ठीक कैसे करते, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो, सभी जानते हैं ना एक चीज, कि जॉइंट में प्रॉब्लम आया तो जॉइंट में वो कार्टिलेज घिस गया, जॉइंट में गैप आ गया, तभी प्रॉब्लम आता। दिस यू नो, ये आप जानते हैं ना, एवरीबडी कैन रिलेट टू इट, हर एक को यही बताया गया, राइट। सो हाउ टू करेक्ट इट, सवाल क्या है, उसको ठीक कैसे करना, यही है सवाल। वो घिस गया है ना, क्वेश्चन मिलेगा, घिस गया है तो पहले भी तो लोग होते थे, 100 years बैक लोगों का इतना नहीं घिसता था, मे बी बिकॉज ऑफ अ वेरी वेरी ओल्ड एज, इवन ओल्ड एज पीपल यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वर्क, है ना। बहुत सारे बूढ़े पुराने भी काफी काम कर लेते थे, आजकल तो 30s में शुरू हो गया ना, 30-35 साल पे शुरू हो जाता है दर्द। तो पहले नहीं घिस रहा था क्या, आज ही घिस रहा है। हमारे दादा दादी नाना नानी का क्यों नहीं घिस रहा था इतना, जितना तेजी से हमारा घिस रहा है ना। ये क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा। इसका मतलब है देयर इज समथिंग, देयर इज एन एस्पेक्ट इन योर बॉडी, आपका शरीर ना 8 सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो पहला क्या है, पहला सॉफ्टवेयर क्या है, वो फास्ट घिसना, यानी विकृति शरीर, वी कॉल इट विकृति शरीर, विकृति हो रही है ना शरीर में, घिस रहा है। तो आज जल्दी घिस रहा है, पहले भी घिस रहा था मगर देर से घिसता। तो व्हाई इट इज हैपनिंग फास्ट, तेजी से क्यों हो रहा है, क्या उसको रोक सकते हैं, क्या उसको रोक सकते हैं। सवाल क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या अभी हम विकृति को रोक सकते हैं, पहले घिसने की स्पीड तो कम कर दो, यस और नो। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, नहीं आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि जानते ही नहीं है कि कैसे रोकना है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप जितना समझते हैं उससे ज्यादा आप समझदार हैं, यू आर मोर वाइज देन यू व्हाट यू थिंक, केवल आपको सही दिशा में देखने की जरूरत है। अच्छा मुझे बताइए, कोई आपको अगर मुक्का मार रहा है, somebody is hitting you, तो नुकसान हो सकता है ना, विकृति हो सकती है ना। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बचाते कैसे हैं, अगर आपको पता चल गया इससे नुकसान हो सकता है, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इमेजिन somebody hitting you, कोई आपको मार रहा है जोर से, आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। देखो हिट बैक वाला एक अलग बात है ना, हिट बैक करना एक अलग बात है, बट व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, पहले प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे क्या, अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं ना, अपने शरीर को थोड़ा टाइट कर लेते हैं, हाँ या ना। इमेजिन करो कोई मुक्का मारा, व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, शरीर को टाइट कर लेंगे, यस और नो। आपको थोड़ा मेरे साथ में रहना पड़ेगा, है ना, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखिए कोर्स आप ज्वाइन करें नहीं करें, आपकी सुविधा, आपकी फ्रीडम, मगर समझ तो सबको आना चाहिए ना कि क्या करना है, ये तो समझना चाहिए ना। तो आप टाइट कर लेते हैं शरीर को, जरा टाइट करें अपने शरीर को, जस्ट टेंस इट टाइट, टाइट करें। हाउ डू यू टेंस योर बॉडी, कैसे टाइट करते हैं, कैसे टाइट करते हैं, वो मसल्स बोन्स ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, नहीं 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 नहीं, वापस टाइट करो, सभी जोर से टाइट करो, जोर से टाइट करो पूरे शरीर को। यू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोक लेते हैं आप, हाँ या ना, सांस रोक लेते हैं पीछे, तभी टाइट होता है, बिना सांस रोके टाइट नहीं होगा। तो जरा लाइफ को ना थोड़ा सा ठीक से देखेंगे, हमें सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। आप लोग बहुत समझदार हो, आज देखना बहुत सारी चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो सांस रोक के टाइट करते हैं शरीर को, वरना नहीं कर सकते। अच्छा तो आपको विकृति अगर हटाना है तो आपके पास में मैकेनिज्म दिया हुआ है ना कि कैसे सांस, लेकिन आपको मालूम क्या करना है कि किस तरीके से सांस को रोकें कि वो घिसावट बंद हो जाए, विकृति बंद हो, पहली चीज, ठीक है। 8 चीजें बता रहा हूं मैं आपको सॉल्यूशन के लिए, 8 एक साथ करना होता है। दूसरी चीज, भाई रोज तो नए सेल्स बन रहे हैं ना, आप डॉक्टर से पूछें, साइंटिस्टों से पूछें, किसी से भी पूछें, वो क्या बोलेंगे, रोज लाखों नए नए
कोशिकाएं बनती हैं। अरे रोज जब नहीं बन रही हैं तो आपका घिसे ही क्यों जा रहा है, बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो एस्पेक्ट कमजोर हो गया ना, ठीक से बन नहीं पा रहा। रोज बन जाना चाहिए, नया बन जाना चाहिए उसको। भाई हड्डी टूट जाती है ना तो जुड़ जाती है ना, नया बन जाता है वहां पे। हाँ या ना? चोट लगती है तो ठीक हो जाता है ना, आपको कहीं चोट लगी फिर ठीक हो जाता है, होता है कि नहीं? तो नए सेल्स बन रहे हैं ना, नए सेल्स बन रहे हैं। तो नए सेल्स जब बन रहे हैं तो आपका तो वो घुटने का जो जॉइंट है या कहीं भी हाथ का जो जॉइंट है, एंकल का, मणिबंध, रिस्ट का, ये तो वापस से बन जाना चाहिए। वापस से क्यों नहीं बन रहा? हाँ, तो इसे कहते हैं प्रकृति शरीर। ये दूसरा शरीर आ गया। अष्टांग चिकित्सा कर रहे हैं हम, 8 शरीर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो नए अगर बन जाएंगे तो ठीक हो जाएगा ना। अगर आपके बोन्स पोरस हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, किसका ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम खा के ठीक हो गया? बता दो कोई। किसी का नहीं हुआ आज तक। 200% कैंसर बढ़ जाता है, चांस बढ़ जाते हैं कैंसर के खाने खाने से लगातार लंबे समय तक खाए। मालूम है आपको? ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। तो कैल्शियम खा के तो किसी की हड्डी मजबूत नहीं हुई, कमजोरी होती जा रही है। सारी दुनिया कैल्शियम खा रही है बचपन से, हाँ या ना? आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप लोग ज्यादा समझदार हैं जितना सोचते हैं उससे। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम कहां आ गई? वो नए सेल्स प्रॉपरली नहीं रिप्लेस हो कर रहे पुराने। इसे कहते हैं प्रकृति शरीर। नए पुराने को नए रिप्लेस कर देने चाहिए। तो वो प्रकृति शरीर आपका कमजोर हो गया। पहले भी तो रिप्लेस होता था ना। ऑस्टियोपोरोसिस कितने लोगों को होता था 100 साल पहले? हाउ मेनी पीपल हैड ऑस्टियोपोरोसिस 100 years बैक? ना के बराबर, आया ना? सो प्रकृति शरीर कम हो गया। अच्छा एक बात बताइए देन, कोई मसल्स बनाने आपको हाथ के, कैसे बनाएंगे? बढ़ाने लेने, ये ना पतला है, इसको बढ़ा देना, कैसे बढ़ाओगे? बनाने की बात करना है ना, तो बनाने की बात बता रहा हूं मैं। इसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? आप जब सब जानते हैं, कितने लोगों का दाएं हाथ स्ट्रांग है? कितने लोगों का दाएं हाथ स्ट्रांग है? उठाइए, राइट हैंड को उठाइए। कितने लोगों का बायां हाथ स्ट्रांग है? बायां हाथ कितने लोगों का स्ट्रांग है? कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? आप ही ने किया ना। व्हेन यू वर बोर्न दिस वाज नॉट द केस। एक को ज्यादा स्ट्रांग बना दिया दूसरे से। यू डिड इट, आपने किया। कैसे किया? कैसे किया? सपोज कीजिए आपको राइट हैंड के मसल्स बड़े करने हैं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप वो करोगे तो आपको भी मालूम है बड़े हो जाए। आप एक काम कीजिए, कोई भी वेट ले लीजिए। जिम में वेट होता, जिम चले जाओ, नहीं तो घर पे ले आओ, एक डंबल ले आओ। केवल राइट हैंड से डंबल उठाओ रोज के रोज। 1 महीने बाद क्या होगा? 1 महीने बाद क्या होगा? राइट हैंड के मसल्स बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। लेकिन मैजिक कहां पे है? मैजिक ये नहीं है डंबल उठा के आपने मसल्स बना दिए। मैजिक कहां पे? आपको मालूम नहीं कैसे मसल्स, आपको मालूम नहीं डंबल उठाया कैसे, आप जोर कैसे लगाया आपने जोर कैसे लगाया? जोर लगा के देखिए जरा। अपने एक हाथ को ऐसे रखिए, दूसरे हाथ से मुट्ठी बांधिए, ठीक है? पुश योर लेफ्ट हैंड लेफ्ट पार्म वेरी हार्ड। अपने बाएं हथेली को जोर से धक्का दें, एफर्ट करें, जोर लगाएं। हाउ डू यू मेक एफर्ट? जोर कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? अभी भी आपकी ट्रेनिंग क्या हुई है? मसल्स, बोन्स, नर्वस सिस्टम, ये वो। नहीं 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 नहीं, आप ज्यादा समझदार हैं। वापस से करेंगे, जहां मैं बोल रहा हूं वहां देखेंगे। वापस से जोर लगाइए, जोर से पुश कीजिए। जितना एफर्ट लगाना चाहते हैं, जितना जोर लगाना चाहते हैं, उतनी सांस रोकनी पड़ती। हाँ या ना? हाँ या ना? एफर्ट दूसरे तरीके से लगाएं। कैसे खींचते हैं, ठीक है? क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों को फंसा लें, खींचो, जोर लगा के खींचो। खींचने का एफर्ट लगाओ। हाउ डू यू पुल? सांस रोक लेते हैं। हाँ या ना? तो वेट उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जोर लगाने के लिए जब वेट उठाते हैं, तब जोर लगाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? सांस रोकना पड़ता।
तो अपना जो भी हाथ स्ट्रांग है ना उसको ऊपर उठाएं, जरा ऊपर उठाएं अपने, लेफ्ट राइट व्हाटएवर, तो टाइट कर लो, टाइट कर लो, टाइट कर लो। दूसरा लूज है ना, देखो सांस रोक के आपने क्या किया, उस हाथ को टाइट कर दिया, डायरेक्शन दे दिया ना, उस मसल की, उस हाथ के मसल की तरफ में डायरेक्शन दे दिया। तो जब आपने एक हाथ से काम ज्यादा किया तो आपने काम कैसे किया, मैजिक बता रहा हूं इसका पीछे देखेंगे तो आपने सांस अलग अलग अनुपात में रोकी और उस तरफ दिशा दे दिया। जब आपने एक हाथ से डंबल उठाया तो डंबल कैसे उठाया, दो चीजें इस्तेमाल की, सांस को रोकना और मसल्स, सांस के रोकने की डायरेक्शन कहां गई, उस हाथ के मसल की तरफ में, और वो हाथ स्ट्रांग हो गया। जब एक हाथ से आपने ज्यादा काम किया तो वो हाथ स्ट्रांग हो गया। मगर काम कैसे किया इसका मैकेनिक्स मैं आपको बता रहा हूं। सांस रोक के आपने डायरेक्शन दे दी, बिना सांस रोक के आप शरीर नहीं हिलाते कोई भी। सुबह से शाम तक वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, हाउस होल्ड वर्क, कोई भी काम करते हैं, पीछे अलग अलग अनुपात में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में सांस रोक के वो कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, सांस रोक के डायरेक्शन दिया। तो आप जानते हैं ना, प्लीज म्यूटेड रखिए अपने आप को, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस होता है, बाकी लोग सुन नहीं पाएंगे, बीच में डिस्टरबेंस हो। दो चीज अभी बात किया हमने, दो चीज अभी बात किया ना, विकृति शरीर, विकृति को कैसे कम करना, वो भी सांस रोक के करना। वो कैसे तो हम बताएंगे, अभी आपको मालूम नहीं है, मगर वैसे ही आप प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते ऐसे ही आप। बनाते कैसे, हाउ डू यू बिल्ड योर बॉडी, बाय होल्डिंग द ब्रेथ एंड गिविंग अ ट्रिगर, वहां पे ट्रिगर देते हैं, बाय होल्डिंग द ब्रेथ एंड गिविंग अ ट्रिगर। आप जनरेट कर सकते हैं अपने कार्टिलेजेस को, अगर आप सही दिशा दे दें उसको, ब्रेथ होल्ड को सही दिशा दे दें। तीसरा शरीर ध्यान दीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। तीसरा शरीर संख्या शरीर, संख्या या संख्या, उसका मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन। सपोज कीजिए आपकी बाईं तरफ जो है वो कमजोर है और दायां बॉडी का साइड जो है वो ज्यादा मजबूत है, तो इंबैलेंस हो गया ना। अगर इंबैलेंस होगा तो तकलीफ होगी। अगर एक पांव छोटा है एक पांव बड़ा है, दौड़ के देखिए जरा, इफ यू रन व्हाट विल हैपन, मोर इंबैलेंस, यस और नो, ज्यादा इंबैलेंस हो जाएगा। तो कभी कभी लोगों का ना एक घुटना दर्द करता है, दूसरा नहीं दर्द करता, ऐसा होता है। कमर का एक साइड दर्द करता है, दूसरा नहीं कर रहा। हाथ का एक हाथ दर्द कर रहा है, एक शोल्डर दर्द कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, एक तरफ ही क्यों कर रहा है, क्योंकि इंबैलेंस है बॉडी में, हाँ या ना। तो आपने उस इंबैलेंस को ठीक करने के लिए क्या किया, आपको तानना चाहिए ना अपना एक साइड जो छोटा हो गया। अच्छा एक काम कीजिए, अपना दायां हाथ सामने की तरफ रखिए, ऐसे तानने की कोशिश करो, तानने की कोशिश करो, और आगे की ओर पुश करने की कोशिश, तानने की कोशिश करो। कैसे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, झटका नहीं देना, झटका नहीं देना, झटका नहीं देना, झटका नहीं, झटका नहीं देना, सीधा रखिए, उसको तानने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेच करने की कोशिश करो। या ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आएगा। एक हाथ को ऐसे सिर के ऊपर पकड़ लें, एक हाथ को सिर के ऊपर पकड़ लें, और जैसे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से खींचने की कोशिश कर, खींचने की कोशिश करो। कैसे खींचते हैं, कैसे तानेंगे अपने आप को, पीछे सांस रोक रहे हैं, सांस रोक रहे हैं, बिना सांस रोके आप तान नहीं सकते अपने आप को। अगर आपको अलाइन करना है तो आपको सांस रोक के करना पड़ेगा अलाइन, तब जाके सही अलाइन होगा। तो अलाइनमेंट के लिए आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे आप अलाइनमेंट के लिए, फिर आप सोचते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे ठीक, अलाइनमेंट करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो संख्या शरीर, अगर संख्या सही होगी ना तो बहुत अच्छे से काम करेगा शरीर, अलाइनमेंट होगा ना बहुत अच्छे से काम करेगा, अलाइनमेंट नहीं होगा तो बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 शरीर बता दिए मैंने आपको, 3 ट्रीटमेंट भी बता दिया मैंने आपको, लेकिन हर एक का बेस क्या है, हर एक का बेस क्या है, ब्रेथ होल्ड करके कहीं ही होता। चौथा शरीर, चौथा शरीर मर्म प्रमाण शरीर, प्रमाण शरीर, यानी लीवर अगर इंसान का निकाल दो तो इंसान काम कर पाएगा।
नहीं कर पाएगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। अगर लिवर निकाल, हार्ट निकाल दे नहीं, किडनी निकाल दे नहीं कर, है ना। तो यानी उनकी जरूरत है। अच्छा, अगर आप अपने जॉइंट को देखें ना, कई के जॉइंट में ना लाल रंग की सूजन होगी और कई के जॉइंट ना काले हो जाते हैं। जॉइंट पेन अलग अलग तरीके का हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है या फिर घिसावट हो सकती है। दो तरीके से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सबकी घिसावट ही है। कईयों के ना सूजन है, रेडिशनेस है। और रेडिशनेस किस वजह से होता है? या तो वहां चोट लगी है तब तो रेडिशनेस आए, अगर चोट नहीं लगी तो किस वजह से होगा? अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा ना, अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो भी जॉइंट पेन आ सकता है। एक रीजन जॉइंट पेन का होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, लिवर ठीक नहीं काम कर रहा, बाई गठिया ऐसे, या फिर एक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो है। तो कारण किया कि आपका प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो पेन है तो पेन किलर खा लिया और एक्सरे करा के देख लिया, गैप है जी, बस। क्या मैं बता रहा हूं, संख्या शरीर। अगर लिवर को आपको ठीक करना है तो कैसे करेंगे? कोई गोली खा के लिवर ठीक होता है, स्ट्रांग होता है? लिवर वीक हो गया, समझ लीजिए, डाइजेशन वीक हो गया, उसको स्ट्रांग कैसे करेंगे? लिवर को स्ट्रांग कैसे करेंगे? अंदर की ओर आपको काम करना पड़ेगा ना, पर लिवर तो हम नहीं काम करते, लिवर का वो तो अपने आप ही होता है, अपने आप ही होता है ना, लिवर तो अपने आप ही काम करता है। अच्छा एक बात बताइए, आप कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं लिवर को? लिवर को कैसे असर दे सकते हैं? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, मगर इससे अच्छा बुरा नहीं है, ये एग्जांपल बिल्कुल सटीक है। कॉन्स्टिपेशन होता है ना लोगों को, कॉन्स्टिपेशन होता है, सभी को होता है, कभी ना कभी सभी को हो जाता है। तो आपको अगर फीकल मैटर को, वो जो मल है उसको निकालने की कोशिश करनी है तो क्या करते हैं? जोर लगाते हैं ना, जोर लगाते हैं। कैसे जोर लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? सांस रोक के करके देखिए, हाँ या ना? सांस रोक के लगाते हैं ना। ऐसे ही अगर आप सांस रोक लें, बाहर की तरफ में डायरेक्शन ना दे, स्टैच्यू हो जाओ, क्या होगा? थोड़ी देर में हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, शरीर गर्मी लगने लग जाएगी। तो यानी सांस रोक के डायरेक्शन कहां गया? ट्रिगर कहां गया? ट्रिगर कहां गया? अंदर चला गया ना, हार्ट की तरफ में, लिवर की तरफ में, डाइजेशन की तरफ में। रचना जी को किसी की आवाज आ रही है, वो बंद कीजिए, देखिए किसकी आवाज आ रही है। हाँ एक, हाँ, तो आपने लिवर को भी अगर स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि अभी तो आपको तरीका मालूम नहीं ना, हार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, किडनी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, थायराइड को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अभी तो तरीका मालूम नहीं आपको। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसे केवल ब्रेथ होल्ड से ही किया जा सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। मगर कैसे करना है वही हम सिखाते हैं क्लास में, क्योंकि हर एक के लिए अलग होता है, कस्टमाइज होता है। आपकी क्या कमजोरी है वो पहले हम डायग्नोस करते हैं कि कौन सा फोर्स अंदर कमजोर हो गया जिससे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसके हिसाब से आपके मेथड को कस्टमाइज किया जाता है। नहीं नहीं, विपස්සना नहीं है जी, विपස්සना का मतलब होता है देखना। नागर साहब, विपස්සना का मतलब होता है देखना। हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। हम विपස්සना हमें नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए। देखिए निर्वाण नहीं देने वाले हम, आपको साफ साफ बता दें, आपको हेल्थ देंगे हम, सीधी सी बात। ना मुक्ति देंगे, ना समाधि देंगे, ना निर्वाण देंगे। समाधि चाहिए तो योगा करो, निर्वाण चाहिए तो विपස්සना करो। हम आपको हेल्थ देंगे, सीधी सी बात। आपका जॉइंट पेन खत्म करना है, स्ट्रांग बनाना है, आपको यंग बनाएंगे, सीधी सी बात कर रहा हूं, ये योगा नहीं है। आपको अगर समाधि चाहिए तो योगा कीजिए, हम आपको कभी रोकेंगे नहीं किसी चीज के लिए। बट हम क्या कर रहे हैं वो क्लियर कट बात बता दें, हम अष्टांग चिकित्सा कर रहे हैं, और कुंभक के जरिए ये अष्टांग चिकित्सा पॉसिबल है, और किसी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। तो हम आपका जेनेटिक मेकअप भी ठीक कर देंगे, मगर मुक्ति नहीं देंगे, निर्वाण नहीं देंगे, समाधि नहीं देंगे हम, सीधी सी बात। वो चाहिए तो आप विपස්සना कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप योगा कीजिए, आप जो मर्जी कीजिए, प्रमाण शरीर है। तो अगर आपको लिवर को हेल्दी करना है, अगर आपके हार्ट को मजबूत करना है, तो हमारे पास में आइए,
अगर मुक्ति चाहिए तो फिर योगा कीजिए या फिर कुछ ना कीजिए। प्रमाण शरीर बताया, थोड़ा ऑर्गन ना साथ में काम करते हैं। हाँ, तो कुंभक थेरेपी है ये। कुंभक ब्रेथ होल्ड या एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म होता है। इसको और भी जगह इस्तेमाल किया जाता है, योगा भी इस्तेमाल करता है कुंभक को मुक्ति के लिए, समाधि के लिए, बट हमें वो नहीं चाहिए, हम इसे हेल्थ के लिए करते हैं। ये आपके ही जीवन का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कविता जी आपको वही मैं बता रहा हूं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे आ रहे हैं अभी, ठीक है ना, आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे। प्रमाण शरीर, आपके अगर ऑर्गन के फंक्शन स्ट्रांग हो जाए, ऑर्गन मजबूत हो जाए, तो आपको कोई जैसे कहते हैं हम जैसे ये डायबिटीज वो होते हैं ना, डायबिटीज, थायराइड, हाँ, ऐसी तरीके की बीमारी होगी क्या आपको अगर आपके ऑर्गन स्ट्रांग हो जाए तो? क्रॉनिक डिजीज कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज नहीं होगा। प्रमाण शरीर, तो ये एक और शरीर है आपका, जो ऑर्गन्स हैं आपके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, मर्म शरीर। अच्छा एक बात बताएं, आपका जो ऑर्गन है, लिवर और हार्ट है, और आपका जो हाथ है, इन दोनों को साथ में काम करना पड़ता है ना। अगर आप दौड़ेंगे तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा ना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो यानी आपके ऑर्गन और आपका शरीर दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, मगर किस तरीके से काम करते हैं? तो उसका एक सॉफ्टवेयर है कि भाई हार्ट किस रेट से बढ़ना चाहिए जब ये इंसान शरीर को हिला रहा है। अब देखिए, अगर आपको मालूम हो तो पहाड़ चढ़ेंगे, अगर पहाड़ चढ़ेंगे, जो वो वहां पहाड़ी होते हैं ना, वो तो बड़े आसानी से चढ़ जाते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है चढ़ने में। शेरपा कहते हैं ना, वो पहली बार एवरेस्ट पे कौन चढ़ा? हाँ, एडमंड हिलरी ऐसा बोलते हैं, पर एडमंड हिलरी का सामान तो एक शेरपा ले जा रहा था, वो भी चढ़ गया। एडमंड हिलरी तो ऑक्सीजन लेके चढ़ रहा था, वो शेरपा बिना ऑक्सीजन के चढ़ गया। तो अलग अलग कैपेसिटी हुई, इसका मतलब आपके ऑर्गन और आपके शरीर की कैपेसिटी अलग अलग होती है कि नहीं? तो वो कौन डिसाइड करता है ये कैसा काम करेगा? एक सॉफ्टवेयर है जिसे मनस कहते हैं। ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर और आपका ऑर्गन और शरीर तीनों मिलकर काम, ये तीनों जहां मिलते हैं उसे मर्म कहते हैं। तो दांतों में दर्द है किसी को? अभी है दांतों में दर्द किसी को? तो एक काम करें, मैं आपको बता रहा हूं, मैजिक ट्रीटमेंट बता रहा हूं, मैजिक ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ये जो जॉ लाइन है ना, यहां पे पीछे है ना, ये कान के नीचे जो जॉ की हड्डी है, उसके पीछे अंगूठा लगा के अगर हल्का हल्का प्रेशर देंगे, रोटेशनल प्रेशर हल्का हल्का देंगे थोड़ी देर तक, 30 सेकंड तक, तो आप देखेंगे एकदम से आपके दांतों का दर्द गायब हो जाएगा। तो ऐसा हम बताते हैं, माइग्रेन है किसी को, पेन है, अगर नीचे सपोज कीजिए कि आपके पांव का नर्वस सिस्टम वीक हो गया, डायबिटिक होते हैं ना, न्यूरोपैथी हो जाता है, ड्रॉप फुट, चल नहीं पाते। गालों पे क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस, मसल कंट्रोल में नहीं आ रहे, लॉक जॉ, वॉइस बॉक्स का इश्यू आ गया। तो ये मर्म थेरेपी उन सब चीजों को बहुत अच्छे से एड्रेस करता है। तो ये मर्म शरीर है। मगर एक बात बताइए, मर्म शरीर तक पहुंचेंगे कैसे आप? और ये मान के चलिए मनस है ना, माइंड है, वो माइंड को कैसे पकड़ेंगे आप? दुनिया तो पूरी माइंड के पीछे पागल हो रही है ना, रोक ही नहीं पा रही। मैं बताऊं, 1 सेकंड में बताऊं, 1 सेकंड में कैसे पकड़ लेंगे? अच्छा, मुंह खोलो, जरा सोचने की कोशिश करो, ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक। मुंह खोल के सोचने की कोशिश करें। अरे होता ही नहीं है, पकड़ लिया आपने माइंड को, हाँ या ना? दूसरा तरीका, सामने अपने दीवार पे किसी पॉइंट, कोई छोटा सा पॉइंट या ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, छोटी सी वस्तु या पॉइंट को देखें। अभी देखते रहें, आई बॉल्स को नहीं हिलाना है, आंखों की पुतलियों को हिलाना नहीं है। सांस भरें, नाक से सांस लें और रोक लेंगे और देखते रहें इस पॉइंट को। अब सोचने की कोशिश करें। अरे आंखों को नहीं हिलाना, आई बॉल्स को नहीं हिलाना, बिना हिलाए सोचने की कोशिश करो। नहीं सोच पाएंगे आप, पकड़ लिया आपने माइंड को, मनस को पकड़ लिया आपने। अगर मनस को पकड़ना है, माइंड को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे? ब्रेथ होल्ड करके, हाँ या ना। तो अगर मर्म तक पहुंचना, क्योंकि उसमें माइंड इन्वॉल्व है,
तो मर्म तक कैसे पहुंचेंगे? ब्रेथ होल्ड करके, और कोई तरीका नहीं है आपके पास में। दिमाग अगर गलत चले तो आपके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते और बीमारी आ जाती है शरीर में। और आप लाख कोशिश करके देख लो, दिमाग कंट्रोल में नहीं आएगा। जितना कंट्रोल करोगे उतना भागेगा। मैंने आपको 1 मिनट में उसको रोकने का तरीका बता दिया। आप लोग सही दिशा में देखेंगे तो सही सॉल्यूशन निकलेगा। क्या हुआ? मर्म शरीर, फिर आगे आगे चले, दोष शरीर। दोष शरीर, दोष कैसे? आपने कुछ सुना होगा ऐसा, वात पित्त कफ। आयुर्वेद आजकल फेमस होता जा रहा है ना, तो ये वर्ड तो बहुत मार्केटेड वर्ड है, बहुत मार्केटिंग हो गई ना इस वर्ड की। वात पित्त कफ, मालूम किसी को हो चाहे नहीं हो, मगर फेमस तो जरूर हो गया, है ना। तो वात पित्त कफ, ये बैलेंसिंग मैकेनिज्म है आपके बॉडी का। आपके शरीर को बैलेंस करने के लिए ये वात पित्त कफ जो है काम करते हैं। वो गुड़िया देखी आपने, इसमें हवा भरी होती है और ऐसे खड़ी होती है, उसको मारो नीचे जाएगी फिर वापस आ जाएगी, नीचे जाएगी फिर वापस आ जाएगी, है ना। नीचे भारी होता है, उसका बैलेंसिंग फैक्टर बना हुआ है नीचे एक। तो वैसे ही आपके शरीर में बैलेंसिंग फैक्टर है ये वात पित्त कफ। ठीक है, वात पित्त कफ बैलेंसिंग फैक्टर है। अच्छा एक बात बताइए, शरीर में गर्मी ज्यादा हो गई तो हम यूजुअली क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पित्त बढ़ गया, है ना। मुंह पे दाने आ जाते हैं, फोटो जीभ पे छाले आ जाते हैं, क्या हुआ? पित्त बढ़ गया। ऐसा करते हैं ना, गर्मी बढ़ गई तो पित्त बढ़ गया। तो एक बात बताइए, गर्मी बढ़ाने का तरीका क्या था? अभी पीछे किया ना, सांस रोक लो, हिलो मत, गर्मी बढ़ जाएगी। और ठंडा करने का तरीका क्या है? दांतों के बीच में से हवा खींचो और थोड़ा रोक लो, ठंडा हो जाएगा शरीर। रोक लो और इस तरीके से करते जाओ, फिर नाक से एक्सेल कर देना, फिर दांत से खींचो, रोक लो, नाक से एक्सेल कर देना, 5 मिनट करो उसे, देखना एकदम ठंडा हो जाएगा शरीर। तो सांस रोक के आप गर्मी बढ़ा देते हो, सांस रोक के आप गर्मी कम कर देते हो। तो वात पित्त कफ को भी अगर आपने बैलेंस करना है, और देखिए जिनका वेट ज्यादा है, एक बात बताऊं, वेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुंभक। बहुत फास्ट होता है वेट कम, बिना नुकसान किए, बिना नुकसान के। खाना भी कम नहीं करना, और तरीके से वेट कम करेंगे ना शरीर को नुकसान हो जाता है। ये तरीका बिना नुकसान के वेट कम करने का है, सभी का वेट बैलेंस हो जाएगा। कफ, कफ तीसरी फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। वात पित्त कफ, इसको भी कंट्रोल करना है तो कैसे करना है? आपको अलग अलग तरीके से सांस को रोकना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, है ना। हम यही कस्टमाइज करते हैं। ये क्या है? दोष शरीर। आप अभी क्या करते हो? कोई दवाई, कोई जड़ी बूटी खा के बैलेंस करने की कोशिश करते हो ना वात पित्त कफ को, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। वो थोड़ा काम करता है मगर बिल्कुल ही आपको अंदर से स्ट्रांग नहीं कर देगा। ठीक है, दोष शरीर। सेकेंड लास्ट, गर्भ शरीर। गर्भ शरीर, आदत होती है ना लोगों को, आदत होती है ना। कई बार लोग आदत के कारण कुछ ऐसा काम कर दे जाते हैं जिससे शरीर को नुकसान हो जाता है, आया ना। किसी को कुछ मीठा खाने की आदत सी पड़ गई, कोई ऐसी गुस्सा करने की आदत सी पड़ गई, या ऐसा कुछ भी आदत शरीर को पड़ जाती है ना, तो उसके कारण भी हम शरीर का नुकसान कर जाते हैं। जैसे हम आदत पड़ा देते हैं पांव को हिलाना, है ना। आप लोग भी बैठे हैं तो कोई ना कोई हिला रहा होगा पांव को, हाँ या ना। आदत डाल देते हैं ना शरीर को किसी ना कुछ है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हाथों की उंगलियां मरोड़ते रहते हैं, दांत बीचते रहते हैं, कसकसाते रहते हैं दांत, हाँ या ना। इसे कहते हैं संस्कार। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज संस्कार। रचना जी, हाँ 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 हाँ, तो इसे कहते हैं संस्कार। इसे एक और चीज, जब आप आदत पाल लेते हैं ना, तो वही आदतें, वही क्वालिटीज आपके आगे की जनरेशन को भी ट्रांसफर होता है।
संस्कारी ट्रांसफर होता है, इसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, जीन्स कहते हैं। आपको डॉक्टर ऐसे बोलते हुए भी मिलेंगे, अरे आपके तो जेनेटिक्स में ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, आपके जेनेटिक्स में है, कुछ नहीं कर सकते, दर्द कम करते जाओ। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं जेनेटिक्स को चेंज करने का। हमारे पास में लोग आते हैं 20 साल से दारू पी रहे हैं, अब आदत नहीं जा रही, नुकसान हो रहा है, और 10 दिन कुंभक करने के बाद कहते हैं कि भाई हमें पीने की इच्छा नहीं हो रही। क्या किया आपने? तो जेनेटिक्स चेंज कर दिया। हमारे यहाँ पे ऐसे बंदे आते हैं जो डायबिटिक होते हैं, हाइपोथायराइड होता है, कैंसर के केसेस होते हैं, और वो फिर दवाई लेना छोड़ देते हैं, उनको जरूरत ही नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता। क्या किया आपने? जेनेटिक्स ठीक कर दिया ना, जेनेटिक्स ठीक कर दिया। ये आप कुंभक से ही कर सकते हैं, देयर इज नो अदर वे। तो आजकल साइंस भी बोलने लग गया है इसको ठीक, जेनेटिक्स को बदला जा सकता है, 99% बदला जा सकता है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि कैसे बदले। वो स्टेम सेल्स की तरफ में जा रहे हैं, हमारे पास में उससे पावरफुल तरीका, स्टेम सेल्स नुकसान कर सकता है, ये कभी नुकसान नहीं करेगा, और उससे ज्यादा पावरफुल है। गर्भ शरीर, इसे गर्भ शरीर कहा जाता है। देन सृष्टि शरीर, सृष्टि शरीर आपका शरीर बाहर के साथ में किस तरीके से तालमेल बैठाता है, अगर आप उसे ठीक कर लेंगे तो बहुत आराम से आप प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, और इंश्योर कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए इस देश के अंदर कुछ चीजें सिखाई जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। इसे क्या कहते हैं? वो ट्रेनिंग को क्या कहते हैं? दिनचर्या, ऋतुचर्या, रजस्वला परिचर्या, वज्र वीर परिचर्या, गर्भनीचर्या। आपका इंटरैक्शन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में, कैसा भोजन, सावन के महीने में कहते हैं ना भारी चीज नहीं खाना चाहिए, मांस मच्छी नहीं खाओ, नो, ये एथिक्स की बात नहीं है। डाइजेशन कमजोर होता है, क्योंकि सन नहीं है ना, सूर्य का रोशनी नहीं पहुंच रही, तो डाइजेशन कमजोर होता है। ये ऋतुचर्या है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको मालूम होना चाहिए ये सब अच्छे से जीने के लिए, पर वो आपकी ट्रेनिंग नहीं मिल रही इन सब चीजों में। तो सृष्टि शरीर, कैसा आपका शरीर इंटरेक्ट करेगा बाहर के फोर्सेस के साथ। ये 8 शरीर बता दिया मैंने आपको, 8 लेवल पे प्रॉब्लम होती है, तब जाके आपको एक जॉइंट पेन आता है। 8 लेवल पे प्रॉब्लम करते हैं आप, तब जाके एक जॉइंट प्रॉब्लम आता है। तो ट्रीटमेंट भी एक तरीके से नहीं होगा, 8 लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ट्रीटमेंट होगा। यही हम अपने क्लास में करा, इसी को अष्टांग चिकित्सा कह रहे हैं। 8 लेवल पे काम करते हैं, और आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम जड़ से निकल जाएगी। आपको शरीर को इस्तेमाल करने में ऐसे लगेगा जैसे जवानी में इस्तेमाल कर रहे थे, अगर उम्र हो गई तो इस तरीके का हमें शरीर, ये 8 लेवल्स पे जब ट्रीटमेंट करेंगे तब जाके ठीक होगा। तो अष्टांग चिकित्सा 9 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, ये 9 वीक्स का प्रोग्राम होता है, और 3 फेजेस में होता है। 3-3 हफ्ते के 3 फेज में हम आपको कुछ चीजें सिखाते हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में डाल लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे केवल ये आपके जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम, अंदर से डिजीज, ऑर्गन की प्रॉब्लम, ये सभी को ठीक करता जाएगा। लेकिन सबके लिए एक प्रोग्राम नहीं होता, सबके लिए एक चीज नहीं सिखाते, सबको शुरुआत में एक चीज है, उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डायग्नोसिस। इसे प्राण शक्ति डायग्नोसिस कहते हैं। इसमें हमें पता चल जाता है कि कौन से फोर्सेस आपके अंदर वीक हो गए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन वी डिजाइन अ कुंभक थेरेपी। तो 5 चीज आपके ऊपर काम करते हैं 5 तरीके से। फर्स्ट थिंग इज अंगन्यास सिखाते हैं आपको, समथिंग कॉल्ड एज अंगन्यास। ये 8 अष्टांग चिकित्सा कैसे डिलीवर करते हैं? अंगन्यास, मर्म विन्यास, शरीर में किसी भी जॉइंट को एक तरीके से रोटेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेथ मूवमेंट, तो उस पर एक असर आता है, इन्वर्गरेशन होता है, उसका एक्टिवेशन होता है। मर्म विन्यास, फिर हठ कुंभक, आपकी बॉडी को एक पोजीशन देने के बाद में एक तरीके से सांस को रोका जाता है, जिससे कि जो पर्टिकुलर जॉइंट आपका प्रॉब्लम आ गया
वो तो होगा ही ठीक, मगर आपके बाकी सारे शरीर के जॉइंट्स को मजबूती मिलेगी। हठ कुंभक, फिर कुंभक थेरेपी, डायग्नोसिस करके एक कुंभक थेरेपी देंगे जिसके लिए आपके जो वीक फैक्टर्स हैं अंदर वो स्ट्रांग होते जाएं। और उसके बाद में चर्या, जैसे मैंने बताया चर्या आपको बताया जाएगा, आपको बहुत चीजों के बारे में बताया जाएगा। जैसे चर्या में मसाज भी आता है, क्या शरीर पे इस्तेमाल करना है क्या नहीं, अभिषेक कहते हैं इसको। आपको मालूम है अभिषेक, शरीर पे क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर किस तरीके का भोजन किस मौसम में, फीमेल्स के लिए हाउ टू कंडक्ट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजस वाला पीरियड को कैसे कंडक्ट करना है ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। तो आजकल यंगस्टर्स में और इवन ओल्ड एज में मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं फीमेल्स। नॉट ओनली मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज बहुत आ रही हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो उसको अगर रजस वाला परिचर्या आप ठीक से करेंगे तो वो चीज हैंडल होती है। इसके अलावा आपको कुछ और बड़े सीक्रेट काइंड ऑफ रस औषधियों के बारे में हम सजेस्ट करेंगे। दे आर नॉट कंपल्सरी, दे आर सजेस्टिव, वी विल सजेस्ट यू। ये कुछ परंपराओं में आ रही हैं, इसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। हम केमिकल दवाइयों की जगह हम रस औषधियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि वैसे ही पेन खत्म करती है मगर वो नुकसान नहीं करती, आपको और मजबूत करती है। तो ये धीरे धीरे करके इस पे बहुत काम चल रहा है इस वक्त में। और जैसे जैसे नए नए, अभी भी पेन किलर हमारे पास में बहुत कमाल का है जो आप केमिकल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दे आर सजेस्टिव। वो हम आप प्रोग्राम में आएंगे ना तो सजेस्ट करेंगे आपको, वो आपकी चॉइस होगी अगर आप करना चाहें। तो 5 लेवल हो गए, अंगन्यास, मर्म विन्यास, हठ कुंभक, कुंभक थेरेपी और चर्या। ये इसके थ्रू आपकी अष्टांग चिकित्सा होती है। 9 हफ्ते का कोर्स। ये जरूरी नहीं है कि आप, जैसे अभी किसी ने पूछा था अगर मिस कर गए तो क्या होगा। हफ्ते में 2 ही क्लास होगी, एक मेन क्लास, एक प्रैक्टिस सेशन। मेन सेशन, प्रैक्टिस सेशन, लर्निंग सेशन एंड प्रैक्टिस सेशन। आपको वीडियो जो है प्रैक्टिसेस का हमेशा मिलेगा, वो हमेशा आपके पास में रहेगा। इंस्ट्रक्शन हमेशा आपके पास में रहेंगे। सपोर्ट, मेंटर सपोर्ट हमेशा आपके पास में। एनी टाइम यू कैन आस्क इन अ व्हाट्सएप ग्रुप कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है। वो दिन भर का सपोर्ट, हमेशा के लिए आपको सपोर्ट रहेगा। वीडियो कभी भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिलती है आपको जब जैसे ही क्लास होती है, क्लास की रिकॉर्डिंग हमेशा आपके पास में रहती है। आपने मिस किया तो आप देख सकते हैं वापस, और प्रैक्टिस। लेकिन थोड़ा कमिटमेंट चाहिए। देखिए, स्टार्ट कुछ करना है ना, थोड़ा कमिटमेंट के साथ स्टार्ट कीजिए। आप 9 हफ्ते के अंदर अपने आप को 100% बदल सकते हैं, एक नया जीवन पा सकते हैं इन 9 हफ्तों में, मगर कमिटमेंट चाहिए। अगर थोड़ा कमिटेड रहेंगे ना, ये ना बॉडी आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ठीक रखिए। सारी दुनिया इसी पे चल रही है, ये खत्म तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा कमिटमेंट चाहिए। टेल बोन पेन, सारे वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम और मसल की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम मसल और बोन की प्रॉब्लम, या वाइस वर्सा कर लो, बोन की प्रॉब्लम, बोन और मसल की प्रॉब्लम, बोन मसल एंड नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम। तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी चीज है उसके लिए ये प्रोग्राम है। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, आइडियाज पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आपका जो भी आइडिया बना लिया ना, थोड़ा सा खुला रखें अपने आप को। मैं बता रहा हूं कि आप ज्यादा समझदार हैं। इफ यू डू द राइट थिंग्स, सॉल्यूशन विल हैपन। सही चीज होगी, आइडिया पे चीज नहीं होती। दर्द खत्म करके दर्द नहीं जाता हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए हमें, जिससे हमारा शरीर ये 8 लेवल पे मजबूत हो जाए। ये जरूर करना चाहिए आपको, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी ऑपरेशन करना तो बहुत आसान है ना, काट पीट के ऑपरेशन कर दिया, मगर कितने लोगों को सॉल्यूशन मिलता है ऑपरेशन से, और आप अपने शरीर का एक हिस्सा खो भी देते हैं। इन्फ्लेमेशन, चंदा जी, इन्फ्लेमेशन तो बहुत आसानी से क्योर हो जाता है। देखिए, मैंने बताया इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका डाइजेशन और लिवर फंक्शन ठीक नहीं होगा, या ब्रूज होगा, यहीं चोट लगी है तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा ये चर्चा में है, क्योंकि आप लोग वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी,
बहुत सारी यूनिवर्सिटी चल रही है ना आजकल, वहां पे ऐसा बहुत सारे चीजें आती है ना, जैसे एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, किसी ने कैंसर की बात की थी, तो आपको मालूम है एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। एलोपीसिया, हेयर लॉस, तो देखो कैसे रोकेंगे, वी कांट गो इनटू द डिटेल ऑफ हाउ इट कैन बी रिवर्स, बट आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके स्कैल्प पे न्यूट्रिशन, वाटर ये नहीं पहुंच पाएगा तो पतले होके बाल गिर जाएंगे। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म सही करेंगे तो ठीक हो जाएगा। किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं ना खोलने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन वीक हो गया तो अंदर प्रेशर लगाना पड़ेगा। कुंभक क्या करता है, अंदर की ओर प्रेशर लगाता है, उससे ठीक होगा। सो एसिडिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। इन्फ्लेमेशन क्यों होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, लिवर फंक्शन ठीक नहीं है, या फिर डिटॉक्स ठीक नहीं है ना, लिम्फेटिक सिस्टम ठीक नहीं है, लिम्फ ठीक नहीं है। अगर शरीर में कहीं पे कोई चीज जमा हो रही है, वहां निकालना है तो क्या करते हैं, अगर एक फुंसी निकल गई उसका पस निकालना है तो क्या करते हैं, आप प्रेशर डालते हैं ना उसके ऊपर। तो अंदरूनी प्रेशर अगर आप बनाएंगे ना तो लिम्फेटिक सिस्टम मूवमेंट चालू हो जाता है, उससे आपका इन्फ्लेमेशन ठीक हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ रहा है ना आजकल, यूरिक एसिड आपने सुना होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किडनी पे असर है, किडनी सफाई नहीं कर रहा ठीक से, तो किडनी को साफ करने के लिए क्या करेंगे, आपके अंदर एक वो जूड़ा होता है ना, स्पॉन्ज होता है ना, किचन वाइप की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, पानी में डालो सोख लेता है। अब पानी कैसे निकालोगे, निचोड़ते हो ना भाई, अंदर की चीज को निचोड़ेंगे कैसे, प्रेशर लगा के तो निचोड़ेंगे। अंदर प्रेशर कैसे लगाएंगे, कुंभक से, और कोई तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो आपको बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से मैं बता रहा हूं, हाउ कैन इट बी क्योर्ड। सोराइसिस, यस, सोराइसिस मे नीड सम अदर सपोर्टिव थिंग ऑल्सो, सोराइसिस से निकल सकते हैं आप, बट वो प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो, अगर आपको इशू सोराइसिस के अलावा जॉइंट का भी इशू है तो आप आए, अदरवाइज अलग से बात करें। आई टोल्ड यू कि लिवर की तरफ में ट्रिगर कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशियो में अगर आप इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड करेंगे ना, तो द ट्रिगर गोज टू द लिवर। So if the ratio is like 1:4:2, then it will impact your liver. अब बताए ये सब चीज इतना डिटेल में कैसे बताएं वेबिनार के अंदर। If you come to the class, you will get a solution. वरना तो solution ऐसे नहीं होता है। We will have to diagnose you. आपका diagnosis करना पड़ेगा कि लिवर पे इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, कौन सा फोर्स वीक हो गया है ना। फिर डायग्नोसिस के हिसाब से आपका डिजाइन किया जाएगा थेरेपी, है ना। अष्टांग चिकित्सा आपके डायग्नोसिस के हिसाब से कस्टमाइज की। माइग्रेन प्रॉब्लम, यस, विल गिव यू मेथड्स टू कम आउट ऑफ माइग्रेन। ओके, हाउ मच इज द फी? सो आई विल स्टॉप हियर, है ना। और क्वेश्चन बाद में लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में और क्वेश्चन लेंगे। आप जो क्वेश्चन पूछिए आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बाद में अनम्यूट करके भी पूछें। तो अभी थोड़ा बता दें प्रोग्राम के बारे में, राइट भाई, प्रोग्राम के बारे में तो पता करना चाहिए आपको। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, यहाँ पे मैं रुकूंगा। Hello. Hello, Rachna ji. Am I audible? Yes, yes, very much. Okay, great. Are you able to see my screen? Yes, the support team part. Yes. Okay, just a second. Okay, so let's know about the program. The program is of 9 weeks duration. And how much classes, how many classes will be there? There'll be 2 live classes per week. One will be learning class and one would be a practice class. जो आपने learning class में सीखा है उसकी आप practice करेंगे। Learning class आपकी स्वामी जी लेंगे और जो practice classes होंगी वो रचना जी या अतुल जी लेंगे आप।
नाउ प्रोग्राम मॉड्यूल्स क्या हैं? जैसे आप देख रहे हैं M1, M2, M3, 21 days each और 3 weeks each मॉड्यूल। अब मॉड्यूल से क्या मतलब है? जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि आपका एक प्राण शक्ति डायग्नोसिस किया जाएगा ताकि ये जान पाए कि जो आपके बॉडी में प्रॉब्लम आई है वो किस वजह से आई है। और एक बार वो जान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको M1, M2 या M3 मॉड्यूल में एडमिट किया जाएगा, उसमें आपकी क्लासेस होंगी। जो अभी स्वामी जी ने बताया है वेबिनार में कि जो पूरे शरीर के अष्टांग 8 शरीर जो हैं, 8 सॉफ्टवेयर जो हैं बॉडी में, उनकी बैलेंसिंग की जाती है इन दीज 9 वीक्स। जो पूरा प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 9 वीक्स का है। हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, वंस यू पे द फीस, then after that you get a Pran Shakti diagnosis form. What is this? What is Pran Shakti diagnosis form? This is a non-medical diagnosis. इसमें कोई ब्लड सैंपल्स कुछ नहीं लिया जाता है। दिस इज टू नो अबाउट योर बॉडी, हाउ योर सिस्टम वर्क्स, क्योंकि सभी की बॉडी अलग होती है, सभी का सिस्टम अलग होता है, इसीलिए सभी का जो रीजन है प्रॉब्लम आने का, फॉर एग्जाम्पल आपके नी प्रॉब्लम है, किसी और को भी नी प्रॉब्लम है, बट उनका जो कारण है वो डिफरेंट हो सकता है। और उसके अकॉर्डिंग जो क्रिया है वो आपकी कस्टमाइज की जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपने सीखा और किसी को सिखाने लग गए, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए प्राण शक्ति डायग्नोसिस जरूरी है ताकि ये पता लग सके कि आपको वो परेशानी क्यों आई है। उसके बाद फिर आप ज्वाइन करते हैं किसी भी एक मॉड्यूल में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था। व्हाट इज द प्रोग्राम फी? 7,500 इज द फी। इसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 तीनों कवर किया जाता है। टोटल 9 वीक्स का प्रोग्राम है। नाउ देयर इज अ स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग ऑफ 6,500। आपने इतनी पेशेंटली वेबिनार अटेंड किया है, सो वी हैव अ स्पेशल प्राइसिंग व्हिच इज 6,500। नाउ more discount. If you can pay the fee by tomorrow 12:30 p.m. there's a very discounted, very special discount, 5,500 only for the complete program. When are the classes starting? 13th September, 14th and 15th. Now why are 3 dates here? We'll go back to the previous slides. There are 3 modules. So based on your Pran Shakti diagnosis form, you will be enrolled into any one of them. But ultimately, you will be completing all. Let's say you entered M1, module 1. Then after completing it, you'll be going to the second module and then the third module. If you, based on your Pran Shakti diagnosis form, if you enter the third module first, so after that, you'll be entering the first and the second. So ultimately, you will be completing all 3 modules. But based on the Pran Shakti diagnosis form, your module will be decided. These are the payment details. We'll share all the details with all the webinar participants, which you can download, and we'll be sharing all the details in the WhatsApp group also. So that's about it. Now, one thing that I'd like to tell is that Rachna ji, can you see my screen or my camera is on? Okay. Yes. So one thing, yeah, thank you. So one thing that we need to understand is this, that although this is a therapy, but the kriyas are being taught to you, which means that this knowledge remains with you. Unlike another therapy where you may be going to a physiotherapist or a doctor or someplace, they'll do some exercises on you, they'll maybe do a massage or do something, but you won't be knowing why that exercise was done. How this program is different, you are taught how you can take care of your body.
in the classes, Swamiji will tell you, if he's telling about a Kriya, what is the logic behind that? What areas of your body is that particular Kriya or exercise is impacting? It means that you gain the knowledge to correct your body yourself. That's the best part of it. Because why I'm telling you this, because a lot of people, they've told us that the fee that you're charging is very less. And some people tell us that the fees is very, very high. So for those people who think it's a very nominal fee, I don't have anything to say to them. But for people who think it's a very high fee, but just understand, this is one knowledge that you are gaining. You are learning to take care of your body, and that knowledge remains with you throughout your life. So with this, I'll end my session here, and we can take up questions now. If you want to ask a question, you can switch on your camera and just ask. Namaskar. There are certain questions like, is this is an online program, completely online program. You will get PDF, videos, notes, everything. We will ensure that you are able to learn properly. आप ठीक से सीख पाए, ये हमारी जिम्मेदारी है. Timings इसकी जो होती हैं, it is in the evening, 6 to 7 p.m. in the evening. It happens every day, Monday, Tuesday, Wednesday. There are 3 different batches. You get one batch to join. So once a week you get the live session and once practice session. Rishu Bajaj is talking about leg pain, Swamiji. The leg pain is like very common. Leg pain for all kinds of pain. This program is for all kinds of pain, and there are some people who have asked. They have BP, diabetes, and other things, hypothyroidism. So we'll be working on all the 8 levels of your body. Your देखिए, Neeta Desai, yes, at this point of time, the way we have been treating ourselves, जिस तरीके से हम अपने आप को treat कर रहे हैं ना, the situation is bad, really bad. To even sit, walk, and do anything, to even move your knee is becoming more and more difficult, because painkillers आप लेते हैं ना, तो immediately तो pain चला जाता है, but then the whole situation aggravates. तो situation खराब से खराब होती जाती है. And then what happens? Then nothing can be done, and people, and the doctor will give you steroids. फिर steroid दे देंगे तो organ damage होना शुरू हो जाएगा. Yes, situation is bad. That is why it is even more important that you take responsibility of this body. जब तक जिए तब तक इसको अच्छे से रखें. And this will only happen if you work towards it, if you strengthen the whole system. Organ जिनका weak है, what is diabetes? It's an organ weakness. Hypothyroid is organ weakness. कौन सा organ weak है? Thyroid gland, or pancreas, or liver, or heart and BP. So what are we doing? हम कर क्या रहे हैं? हम इन organs को तो strong कर रहे हैं ना. So you'll get benefited in your organ issues also. Archana Singh writes about I am bedridden with severe rheumatic arthritis. All my joints are painful and with inflammation. I can't do exercises. What you did in this video. Am I eligible for the program? Yes. See, there are basically 3 different sets of things that you do in the program. Out of these 3, 2 of them are you can just do sitting. आप बैठ के वो कर सकते हैं. One is something where you have to move the body in a particular way. That you can take on later. Once you feel a little strength in your system, वो जो तीसरे वाला part है उसको आप बाद में भी कर सकते हैं. So once you learn whatever, we will tell you how to do it. Sitting also on the bed. बैठ के भी कैसे कर सकते हैं, है ना? So आप आएंगे तभी होगा. ऐसे बैठ के लेटे रहने से तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, ये तो आपको बता दूं, है ना? यू विल हैव टू डू समथिंग. कुछ तो करना पड़ेगा. Devika Murthy ma'am writes, will the program help in hyperacidity?
Yes, I told you it is not just the physicality. कभी कभी मैंने आपको बताया, your joint pain may be because of your liver dysfunction. आपके लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम से भी जॉइंट पेन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है. It is not always the physicality. So if we correct the organ issues, you'll see you'll come out of this problem. Swamiji, she's also suffering from asthma. हाँ, अस्थमा तो आपको देखो सारी आपकी दवाइयां छुड़ा देंगे, चिंता नहीं है, बहुत जल्दी आराम मिल जाता है अस्थमा. You get relief in asthma very easily. There are many people who have been taking 16, 17 tablets a day. Inhaler लेते रहते थे, अब छूट गया. तो अस्थमा तो आपको अगर दवाई इनहेलर लेते रहना तब तो फिर कुछ ना करें. Then you live your life. But if you have to correct it, अगर इसको ठीक करना तब तो कुछ करना पड़ेगा. Okay, Suparna ma'am writes, neck and cervical pain stays all the time. We have told you about that. Any kind of pain, we will diagnose you. आपको diagnosis करेंगे कि ये pain कहाँ से शुरुआत हुई, क्या चीज weak हो गई आपके अंदर, and then we strengthen it. You will come out of it easily. Okay, Geeta Upadhyay ma'am, can you unmute yourself and talk about your multiple problems so that Swamiji can understand? You have just mentioned multiple problems. Geeta Upadhyay ma'am, please unmute yourself. Hello. हाँ जी. Yeah. Hello. Swamiji, can हाँ you जी, hear बोलिए me, बोलिए. please? Yes. बोलिए बोलिए. I have actually what is wrong with me is that the lower back pain and 3 of my discs have totally dissolved. They are not there any longer. And because of that, my nerves get pressed and my legs ultimately, I can walk for a little while, but if I stand for a very long time or anything of that sort, then my legs start paining and then that becomes unbearable and I have to get onto my bed. So the first question is is to हाँ Just वो a मैं minute. समझ That गया. is one problem. That is one problem. The other is that I have fatty liver, third grade. I've got stones in my gallbladder. I've got nervous problems. And plus with that, I have had one angina attack. I don't know whether I might end up getting another. So that's the type of multiple problems that I have. Yes. So What would you suggest? When you are talking about multiple problems, if you look at these problems separately, you will never be able to find out why all these have happened. Because suddenly, when you go to get your spine checked, the doctor says this is like worn out, completely worn out. But why it has happened to you? That is something you need to find out. Now, liver damage. Even people with liver cirrhosis can come out of their problem. We have certain things through which there is very, very high chance that people 100% can come out of their problem. Angina attack, when you say angina attack, it is basically, it can be a panic, due to a panic, or it can, due to panic, what happens, your oxygen doesn't reach a particular part of your heart muscles. So why these all things are happening? The real question is why these things are happening. There is a base to it. There is somewhere it started. There is something in you from where it all got created. And what we are saying is that is what we will be diagnosing. शुरुआत कहाँ से हुई? So if I tell you one example, because the even your face shows lot of inflammation. अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ. कुछ थोड़ा सा वो भी है and well पूरा problems हैं इस वक्त तो फिलहाल. So if I tell you, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप जरा समझने की कोशिश कीजिए मैं बताना क्या चाह. So in you, what I see, there is something called as samana vayu. There is something called as samana vayu. What does it mean? It means the distributive factor of your body, which creates digestion and distribution.
which create metabolism and distribution. So the distributive factor of your body, or technically I'll say Saman Vayu, is weakened. It started with weak Saman Vayu and then it went on. And I said, आपके जो कार्टिलेजेस घिस क्यों गए, वापस क्यों नहीं बने? नए सेल्स तो रोज बन रहे हैं ना, वापस क्यों नहीं बने? Because this Saman Vayu is not that strong in you. इतना strong नहीं है, उसकी वजह से बन भी रहा है तो it is not rejuvenating, और वहां पे वो नहीं हो पा रहा है rejuvenation और repair. So that is what we do. We diagnose you, find out the root cause, teach you certain things which will fundamentally correct you. Then we will customize the whole module and give you special method or support system to come out of your weak areas. Support system also, if people are into, like somebody comes with the liver cirrhosis, then we'll find out reason of liver cirrhosis, customize the module according to that, also suggest certain supportive measures. So sorry, एक चीज और प्रॉब्लम एक और है, ये है कि तो मैं I barely eat anything. I mean I'm basically more on vegetables. रोटी और चावल तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये कंडीशन है कि तो I'm increasing weight by about 3 and 4 kgs in about 2-3 months, and I'm not being able to control it at all. Cellulite deposits आने लग गए हैं. तो जो भी आप बोल रहे हैं ना, जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया ना, वो उसकी शुरुआत है, और आप वही चीजें बता रहे हैं जो कि एक्चुअली इसको प्रूव कर रहा है. तो हाँ, तो बात ये है कि आपको कितना भी पता चल जाए सेल्यूलाइट डिपॉजिट और दिस और दैट, देयर इज नो सोल्यूशन. पता चलने से सोल्यूशन नहीं होता. इफ यू फाइंड आउट द रूट कॉज, वर्क अपॉन इट, यू विल गेट अ सोल्यूशन, यू विल कम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, है ना. आपके घिस गए हैं जो कार्टिलेजेस, डू यू नो दोस कार्टिलेजेस कैन बी रिपेयर्ड. उनको रिपेयर किया जा सकता है, कम से कम आपकी जिंदगी को बहुत बेटर 100% चेंज किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि आप मैराथन दौड़ने लग जाएंगे मगर आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम से कम इतना बना सकते हैं हम आपको. तो अभी भी अगर नहीं गए रिपेयर की तरफ में, तो डिटीरियोरेशन बहुत फास्ट हो गया है अभी. एंड लेट मी टेल यू, आप तो वेजिटेबल पे आ गए, मगर वेजिटेबल पे आके आपका रिपेयर फास्ट हो जाए, ऐसी तो कोई, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता. नहीं, लॉजिक तो ये है कि तो सिर्फ इतना ज्यादा रेस्ट है, इनएक्टिविटी है, तो इसीलिए इट इज बेस्ट कि तो आई ईट समथिंग दैट इज लाइट, सो बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. आई एम सेइंग बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. हाँ, आप सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा, मगर दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. यू मस्ट वर्क टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन एटलीस्ट. आप लाइफ में बाकी दवाइयां जो लेते रहे, सर्जरी जो करवाएं, मगर अपने को अंदर से अगर आप नॉर्मली तो आई डोंट टेक एनी मेडिसिन, एंड frankly speaking I myself am a doctor and my husband is also a retired doctor. तो उसके बावजूद ये है कि तो आपको तो cannot do anything about it. आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा. हाँ, तो आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा कि हम वो वेबिनार, इसीलिए तो मैंने ज्वाइन किया था कि तो मुझे ये चीज तो समझ पड़े कि तो हो क्या रहा है प्रॉब्लम. हाँ, वो डायग्नोसिस से हमें पता. जैसे एक एग्जांपल बताया मैंने आपको. जी. There are 84 factors in your body which works toward functional system or functioning these 8 different levels. पे वो फंक्शन करने में मदद करते हैं. There are 84 forces in your body. कोई ना कोई वीक होगा तो एक इम्पैक्ट आता है, and then it becomes a vicious kind of a circle. एक कमजोर हुआ, फिर दूसरा कमजोर, फिर तीसरा कमजोर, फिर उससे पहला कमजोर. यही विशियस सर्कल चालू हो जाता है. आप केवल उसको मैनेज करते रहेंगे तो ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, सिचुएशन खराब ही होती जाती है. दिस इज द टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ. इसको अंदर से अगर आप ठीक करेंगे, फिक्स करना शुरू करेंगे, एटलीस्ट यू विल बी मच मच बेटर देन एट प्रेजेंट व्हाटएवर द सिचुएशन इज. ठीक है जी. ओके. और हाँ, और कोई क्वेश्चन है? Anita Arora ma'am asks, I am on steroids for arthritis and I can't move. Can I join? Please reply. प्लीज अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. तो अभी तो आप ले सकते हैं स्टेरॉइड, टेक द स्टेरॉइड, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी इवन एबल टू बी अ लिटिल कंफर्टेबल. मगर आपको अल्टीमेटली तो उससे निकलना पड़ेगा ना.
अल्टीमेटली तो उससे निकलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? वर्क टुवर्ड्स इट। उसके लिए काम करें, प्लीज काम करें ना। मुझे देख के अच्छा नहीं लगता व्हेन आई सी पीपल इन सच सिचुएशन, मुझे देख के अच्छा नहीं लगता कि ये मतलब क्या सिचुएशन में आ गए। बट अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओनस लाइज ऑन यू। आपके ऊपर जिम्मेदारी तो आखिरकार आती है। हम तो आपको पुश नहीं कर सकते, हम तो आपको समझा सकते हैं कि ये करना चाहिए, और आखिरकार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अनु मैम, आज आर्थराइटिस की मेडिसिन भी छूट सकती है? हाँ जी, आर्थराइटिस की मेडिसिन भी छूट सकती है। देखिए, टाइम अलग अलग लगेगा सबके लिए, बिकॉज एवरीबडी सिचुएशन इज डिफरेंट, सिस्टम इज डिफरेंट, समय अलग अलग लगेगा। लेकिन 100% सबको इतना बेनिफिट होगा ना, उनकी लाइफ बदल जाएगी, ये मैं आपको बता। टाइम अलग अलग लग सकता है। Okay, Kalpana Bhandari ma'am, you can ask your question. Please unmute yourself. You have raised your hand. Yes, I just wanted to ask one question. जैसे मुझे थायराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड लीवर प्रॉब्लम है, तो अभी जैसे मॉड्यूल से डायग्नोस हो जाता है, तो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट 3 प्रॉब्लम्स ओनली, और आई विल बी लर्निंग मोर ऑन अदर डिसीज एंड क्यूरेस? अच्छा, एक बात बताइए, जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ आई पुल यू फ्रॉम वन हैंड, डज द होल बॉडी कम्स और योर हैंड, जस्ट योर हैंड कम्स? The whole body. The whole body comes. So when we are working on the root, your whole body will be worked upon. आपका पूरा शरीर, इसीलिए तो कह रहे हैं यू स्टार्ट विथ वन मॉड्यूल, M1 M2 M3 जो बता रहे हैं ना, एक मॉड्यूल से तो आप शुरुआत करेंगे जो आपकी एक्चुअल में अभी प्रॉब्लम दिख रही है, बट अल्टीमेटली यू विल बी डूइंग ऑल द 3 मॉड्यूल्स. Okay, so So, I'll be you will working on be- all the Yes. problems which I'm having, not only focused on one. Yes, not only that, फ्यूचर प्रॉब्लम में भी काम करेंगे आप. यू विल बी एबल टू, दिस इज प्रिवेंटिव ऑल्सो इन नेचर. आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं ना, उसको भी आप रोक पाएंगे. ओके, स्वामी जी, एक और चीज पूछनी थी. जैसे ये पीडीएफ वगैरह मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वो जो मेरे प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हैं वही है कि वो जनरल में सब मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो आपको अकेले अलग से मिलेंगे. यार, कस्टमाइज तो सबका अलग ही होगा ना. शुरुआत तो आपको कुछ सिखाएंगे आप, मगर कस्टमाइज तो सबका इंडिविजुअल होगा. ओके, तो आपका जो वो 9 वीक्स का है, मतलब प्रैक्टिस एंड थियोरी, वो थियोरी 1-to-1 होगा कि जनरल होगा? वो तो जनरल होगा, थियोरी नहीं होता इसमें कुछ, सब कुछ प्रैक्टिकल है इसमें. ओके, इसमें कुछ भी थियोरी नहीं है. थियोरी तो हम उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, लाइक अभी बात कर रहे हैं, थियोरी ये है. बट जो प्रोग्राम है वो 100% प्रैक्टिकल प्रोग्राम है. उसमें पीडीएफ वगैरह आपको इंडिविजुअली सेंड किया जाएगा. आपके मेल आईडी पे आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट की जाएगी, और वहां पे आपके वीडियोस भी होंगे, कभी भी आप देख सकते हैं. इट विल बी देयर फॉर यू फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट लाइक लाइफ टाइम तक आपके पास में रहेगा. ओके, ओके. आफ्टर दिस प्रोग्राम आल्सो वी विल बी इन टच लाइक विद दिस. यस यस यस. ऐसा नहीं है कि हम कहीं और जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं. दिस इज लाइक अ मेंबरशिप फी. ये मेंबरशिप फी, हम बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं. यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अदर प्रोग्राम. ओके, ओके. थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू. शोभा मैम राइट्स, नी पेन, लोअर बैक पेन, नेक पेन पूरी तरह से 9 वीक्स में ठीक होगा. आई एम 57 years old. 9 वीक्स में पूरी तरीके से ठीक होगा नहीं होगा, वो तो आपके सिचुएशन के ऊपर है. बट आप देखेंगे 9 वीक्स में बहुत कुछ बदल जाएगा आपके अंदर. हाँ, थोड़ा और ज्यादा टाइम. अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आप किसी प्रॉब्लम को, अपनी सारी प्रॉब्लम को 1 साल के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया, अब मुझे बताइए, इज इट अ बैड डील? आपके पास तो और कोई चारा नहीं है ना. स्टीरॉइड खाएंगे, दवाई खाएंगे तो और खराब हो जाएंगे. अगर मैं आपको बोलूं चलो 1 साल आपने प्रैक्टिस किया, तब जाके सब कुछ ठीक हो गया आपके अंदर, इज दिस अ बैड डील? क्योंकि और तो कोई चारा नहीं. सो इट इज जस्ट टाइम, कितना आपको काम करना पड़ेगा. बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इसे एक बार से शुरू कर देते हैं, you will see, you will take care of all the problems. Time taken will be different for different people. समय अलग अलग लगने वाला है सबके लिए, according to their situation. Charu ma'am writes, my mother is suffering from Parkinson from last 10 to 12 years. Can she be cured? Is there any other solution for Parkinson? There is actually no solution for Parkinson. But I can give you examples. As I said, I can give you examples of people who are suffering from paralysis.
they regained their sensation. 98% of their sensation got back. तो पैरालिसिस का कोई इलाज नहीं. माइस्थीनिया ग्रेविस, यू नो, बोटॉक्स का इंजेक्शन लेते हैं, अमिताभ बच्चन को भी है, बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाता रहता है. मगर माइस्थीनिया ग्रेविस हमारे यहाँ पे कुंभक करने से वैसे ही ठीक हो गया. लॉक जॉज, वॉइस इशू, नर्वस सिस्टम का तो कोई भी इशू, पीपल वर नॉट एबल टू. आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ मैराथन रनर्स, जो मैराथन दौड़ते थे अब वो दौड़ नहीं पाते थे. Now after doing 3 months of Kumbhak, they are again thinking of running a marathon. अब आप बताइए, people who couldn't walk for 10 minutes, now they are walking for the whole day. मैराथन दोबारा से दौड़ने की सोच रहे हैं. तो that is what, these are the results we have got. तो solution तो है, मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो इंसान है ना, जिनको प्रॉब्लम है, पहली बात तो वो कुछ करना चाहते हैं इसके लिए. पहली बात तो उनको जरूरत होनी चाहिए. जब वो करेंगे बिल्कुल रिजल्ट आएगा. Manisha ma'am writes maintenance of body post menopause. हार्मोनल, यू आर सेइंग हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल बैलेंस क्या ये इससे होगा? यस, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बैलेंस इन द होल सिस्टम. इससे हार्मोनल बैलेंस भी आएगा. नॉट ओनली हार्मोनल बैलेंस, मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज इससे हैंडल होते हैं. आपको मालूम है, मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल, आजकल सभी को साइकोलॉजिकल इशू है. कोई माने चाहे नहीं माने, जिस तरीके से हम जी रहे हैं उस तरीके से सबको साइकोलॉजिकल इशू. पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल निकल जाती हैं. Tina Gurung ma'am writes, how about mobility in paralysis? आई हैव ऑलरेडी सेड, पैरालिसिस में मोबिलिटी का मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया. मोबिलिटी इंप्रूव्स एंड द पर्सन विल बी एबल टू डू थिंग्स वेरी नॉर्मली. Okay. Geeta ma'am, please unmute yourself and you can ask your question. B. Geeta ma'am, you have raised your hands. Okay, June D'Souza, you can unmute yourself since she's not able to unmute. June D'Souza ma'am, you raised your hands. Please unmute yourself and ask your question. Okay, in the meanwhile, Subhashri Dash asks, 75-year lady suffering from asthma, IBS, so many other problems. Can she join the program? Yes, of course. If you have multiple issues, what are you waiting for? और खराब होने की सिचुएशन के लिए वेट करें क्या? नहीं नहीं नहीं. If you have multiple issues, take charge. Okay. Okay, Kiran ma'am, you can ask your question. Please unmute yourself. Kiran ma'am, Geeta ma'am, June D'Souza ma'am, Renu ma'am, all of you all have raised your hands. You can ask your questions one by one. Please unmute yourself. Savita ma'am, you can ask your question. Gurpreet ma'am, please unmute yourself. Swamiji is waiting to take up your questions. Galaxy A20. Okay, Prema Ramani ma'am writes, I am suffering from chronic asthma since birth. I am 62 years old. I have been on steroids for some time. You're talking of Kumbhak. I can't retain my breath for a long time. Will I be able to do Kumbhak? Yes. Easily you will be able to do Kumbhak. हम आपको रोक के हमेशा रखने के लिए नहीं कहेंगे. We don't tell you to hold it for long. According to your situation, we will change the method according to your convenience also. That is why customization is needed. Customization हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी आपकी सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज किया जाएगा. Don't worry. And if you want to come out of steroid and the situation, you must work towards it. इसके लिए आपको करना चाहिए. Okay, Kiran ma'am, you can write down your question if you're not able to unmute. Savita ma'am, you can ask your question. Shobha ma'am writes, इस चिकित्सा को हम ऑनलाइन 1 minute ऑनलाइन कर रहे हैं, हम ठीक से ना कर पाए तो इस चिकित्सा का साइड इफेक्ट्स हो सकता है क्या? नहीं, आपका शरीर अपने आप को कभी भी नुकसान नहीं करता. बाहर से आप कुछ भी लेंगे, आपके भोजन का भी नुकसान हो सकता है. फूड कैन ऑल्सो डू सम डैमेज टू यू, बट योर सिस्टम नेवर डज डैमेज टू यू.
आज तक हिस्ट्री में मुझे बताइए, अपनी सांस खुद रोक के कौन सा इंसान मरा है? नोबडी हैज डाइड होल्डिंग हिज और हर ओन ब्रेथ। किसी और ने रोकना पड़ता है या फिर उसको फांसी लगानी पड़ती है, बाहर से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपका शरीर हमेशा आपको बचाता है, कभी भी बिगाड़ता नहीं। तो इसका कोई नुकसान नहीं होता और आप इसे गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो बताएंगे ना उसमें केवल इतना ही होगा कि जैसा बताएंगे वैसा नहीं कर पा रहे, उससे हल्का कर पा रहे, बस इतना ही होगा। तो इसमें आप गलती नहीं कर सकती। ये डिजाइन ही किया गया है कोर्स को ऐसे कि आप गलती कर ही नहीं सकते इसके अंदर। आप अपने शरीर को इस्तेमाल करेंगे, उसमें कभी गलती होती भी नहीं है। आप दवाई खाएंगे तो गड़बड़ी होगी, फूड भी आपको नुकसान कर सकता है, आपको हर चीज बाहर की नुकसान कर सकती है, शरीर के अंदर का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, आई एम एक जस्ट मिनट, एक मिनट। सविता मैम। हाँ हाँ, कोरोना हो गया था आपको, अपन ऐसा कुछ बोला। क्या ना कि वो विजन बहुत ज्यादा डिटेरियरेट हो गई। हाँ विजन हाँ में काफी हो गया। तो ये भी इम्प्रूव हो देखिए, जाएगा। हाँ हाँ, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए मेरे तो एक्सीडेंटल आई है, मेरे तो एक्सीडेंट हुआ था तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेंस वेंस निकला हुआ। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, इंटरवेंशन नहीं हुआ, अगर आपकी आंखें नॉर्मल हैं, मतलब प्राकृतिक हैं, तो उसको इंप्रूव किया जाता है। हमारे पास में ऐसे केसेस हैं जिनके चश्मे निकल जाते हैं और उनकी आंखों की सिचुएशन, यहां तक कि ऐसे लोग हैं जो कि जिनके रेटिना में भी असर आ जाता है। ग्लूकोमा एक ऐसी चीज है जो ठीक नहीं होती, मगर स्वामी, मैं हाँ मेरे हस्बैंड को ये रेटिनोपैथी प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इनको इंजेक्शन देता था। तो वो किसी ने फिर नेचुरल केयर वाले ने हमको बताया कि स्टेरॉइड है, इसको मत लगवाइए, हाँ, इससे आफ्टर हाँ, वो तो खत्म ही हो जाएंगे आंखें। सर हाँ। मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूं, तो मैंने इनको मैग्नेट थेरेपी दिया। 3 साल से हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो मैं नेचर क्योर पे ही बिलीव करती हूँ। हाँ, नेचर क्योर बहुत अच्छी चीज है बाहर से सपोर्ट के लिए, लेकिन एक और चीज हम जो बोल रहे हैं, आप जो करना चाहें करें, अंदर से उसको थोड़ा सपोर्ट दें। तो मैंने एक आई का कैटरेक्ट का कराया हुआ है सर्जरी, लेकिन अच्छा, दूसरी नहीं कराई। अभी डॉक्टर ने बोला कराने के लिए, बट अभी मैं उसको 1-2 साल से टाल ही रही हूँ। मैं अपना ही कर रही थी कुछ। हाँ तो अब ये कोरोना के बाद बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गई आई। हाँ, वो तो हो गई। अंदर से अगर थोड़ा उस पर काम करते ना तो आप इसे और रोक सकते थे। ओके। तो अभी ये कैटरेक्ट खत्म हो सकता है नेचुरल वे में? कैटरेक्ट खत्म, देखिए एक बार कैटरेक्ट बिल्ड होना शुरू होता है ना, तो हम उसे रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। हम उसे रोक सकते हैं, मगर खत्म आप थोड़ा पहले करते ना तो हम खत्म कर देते हैं। लेकिन अब कुछ रस हैं, कुछ रस औषधि होती हैं जिससे कि ये खत्म भी होता है, मगर अभी हम आपको कोई उसका केस स्टडी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो केवल ऐसी जेनरिक लोगों पे किया गया था। हमारे पास में कोई केस स्टडी ऐसे लिखित में नहीं है, मगर कुछ रस औषधि होती हैं जिससे कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। वो अगर आप कोर्स में आते हैं ना तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि वो आप मैंने पूरा वेबिनार अटेंड किया आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं इन्हीं थेरेपीज पे ही चलती हूँ। अच्छा, ठीक, बहुत Okay. बढ़िया। Kiran ma'am writes about her son, 30-year-old, having joint pain. वो आजकल तो यंगस्टर्स में बहुत शुरू हो गया, बहुत शुरू हो गया है। मैंने तो आई गेट केसेस 4 year old किड टेकिंग इंसुलिन। 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा क्या होता है, इंसुलिन ले रहा है। 13 साल की बच्ची जो है वो थायराइड हो गया, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। 8 साल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। जरा सोचिए, फर्टिलिटी के हम कोर्सेज करते हैं का, वो अलग से प्रोग्राम करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आए, 28 साल में मेनोपॉज आ रहा है। आप सोचिए, आश्चर्य होगा, 28 साल की लेडी अभी तो जितनी मेनोपॉज आ गया, डॉक्टर ने कह दिया मेनोपॉज आ गया, बस खत्म। सो इसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेने की जरूरत है अपनी। आप ये ना सोचें कि जो कुछ भी आपको कहा जा रहा है वो सही है, कल को कुछ और बोला जाएगा। हेलो। हाँ जी बोलिए।
हाँ मैं एक बार और मेरे ना पूरा स्पॉन्डिलाइसिस जब स्टार्ट हुआ है और मेरी पीठ बहुत दर्द हो उसके रही बाद है। हम अपनी प्रैक्टिस में ला अगर सकते हैं start- इसको और पेशेंट हाँ जी, हेलो, मैं अगर पंचकूला से बोल रही हूँ, मेरा अभी अर्ली स्पॉन्डिलाइसिस हाँ हाँ हाँ, निकला है। आपका स्पॉन्डिलोसिस सुन लिया मैंने, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये क्या बोल रही हैं सविता जी, क्या बोला आपने? ये सर कि जैसे मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में हूँ, तो अगर जैसे ये पूरे तीनों लेवल करने के बाद तो हम और पेशेंट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसे अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसमें ना कस्टमाइजेशन एक थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हम आप हमारे साथ में एसोसिएट होंगे ना, तो हम बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे। स्पॉन्डिलोसिस अगर शुरू हुआ है तो अभी अगर आप चार्ज ले लेना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ क्योंकि बहुत मुझे ना डिटीरियरेट अभी होने के बाद हाँ में समय बहुत लगेगा। अभी हाँ, अभी ये आपका करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या करना, ये इसका कैसे ये आपका मैंने ये बताया कि ये कोर्स के बारे में आपको ना शेयर किया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप एनरोल करेंगे ना, फिर हम आपको गाइड करेंगे, और ये 9 हफ्ते का प्रोग्राम होता है। अच्छा, तो इसमें डाइट मुझे वगैरह भी सब बताई जाएगी, हाँ, कैसे क्या क्या खाना? इसमें डाइट वगैरह भी बताते हैं। अच्छा, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग के जो भी क्वेश्चन है ये नंबर आप शेयर कर दें, ठीक इसके है, आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू जी। Thank you so much for everybody for attending the session. Thank you, Swamiji, for enlightening us about the various problems which the current generation and the current people of the 21st century is facing. So now I would request yes, yes, you can actually write down your questions, leave your name and numbers, and we can get back to you. We will, all your questions will be answered. Yes, ma'am, you can unmute yourself and ask. Can you please tell me your name, ma'am? Hello. Yes, I can hear you. I can just hear hello. Ritika ma'am writes about pain in right leg. Ma'am, please join the Ashtang Chikitsa online therapy and your pain will be resolved. Because we hello, need to ma'am. get into the root cause. Yes, tell me, ma'am. Please mention your name. हाँ, सविता ओंकर मैं बोल रही हूँ सांगली से। हाँ, बोलिए बोलिए मैम। नमस्ते। हाँ मैम, हाँ नमस्ते मैम। मैं 2 महीने हो गए, मेरे प्रॉब्लम्स एक एक निकल रहे हैं। पहले मुझे सिर दर्द हो रहा था, मैंने न्यूरो सर्जन के पास गए और वहां पे स्कैन करवाया, कुछ नहीं बोला, टेंशन होगा। फिर उसके टैबलेट लिया मैंने। फिर उसके बाद मुझे अभी पेट दर्द चालू हो गया। पेट दर्द का भी स्कैनिंग करवाया, टैबलेट्स बहुत लिए। अभी उसमें स्कैन में कुछ नहीं आया। अभी फिर मुझे हल्का सा दर्द रहता है पेट में और वॉमिट का उल्टी आएगी ऐसे मुझे होता है, लगता है। हल्का पेट दर्द है। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि क्या करूं। देखिए, ये बेसिकली जो आपको कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स भी है क्या? कुछ नहीं है, स्कैन करवाया तो कुछ नहीं नहीं निकला नहीं नहीं, वहां पे। कोई मसल जॉइंट पेन वगैरह कुछ रहता है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, ये सर दर्द, ये पेट की प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेड है, राइट? तो सर दर्द आपका एसिडिटी के कारण भी हो सकता है। आप जो बोल रहे हो उल्टी उल्टी लगता है, तो हमें इसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपना नंबर हमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए और हम लोग आपको बताएंगे कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना है इसके लिए। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू। यस, प्रणति झा मैम, you can you need to check your net connection because everybody else can hear me. B Geeta ma'am, please unmute yourself and ask your question. B Geeta ma'am, I have already unmuted everybody. Renu ma'am, please ask your question. You have raised your hand. Okay. Please write down your questions in the chat box along with your number. We will get back to you. If you cannot unmute yourself. Yes, tell me. Hello. Your name, please. Yes. Suman. Suman. Yes, ma'am.
हाँ, मेरे क्या प्रॉब्लम रहती है, मुझे काफी टाइम से एसिडिटी और स्टमक पेन जैसे रह जाता है, और मुझे वीक में या 15 डेज में, कभी 1 मंथ में बार बार लूज मोशंस हो जाते हैं। कुछ भी खाती हूँ या कोई जैसे एक्सर्शन हो गया, बहुत काम कर लिया पूरे दिन में, तो मुझे शाम को लूज मोशन हो जाते हैं। तो बॉडी पेन बहुत रहता है मेरा, मतलब मुझे हर वक्त ये लगा रहता है कि आई एम नॉट फ्रेश, आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश। और Okay. सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, एक बाजू में मेरे दर्द आता है बहुत ज्यादा वाला, लेकिन पूरी मसल्स में खूब पेन रहता है, खूब पेन। तो मतलब आप मुझे ये कई बार ऑनलाइन थेरेपी, मुझे तो डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, मुझे लगता है कि आई मस्ट डाई, मुझे अच्छा नहीं फीलिंग आता। नो मैम, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। जब आदमी को तकलीफ होती है और कुछ भी नहीं सूझता है, सो दैट इज व्हाट यू फील लाइक, बट डोंट वरी, स्वामी जी हैज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स। आई एम श्योर आपका भी सही हो जाएगा। आप ये ऑनलाइन थेरेपी में एनरोल करिए और उसके बाद हम लोग संभाल लेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, Renu ma'am, you have raised your hand. Please unmute yourself and ask your question, or write down your question along with your number in the chat box so that we can get back to you. Anita ma'am, please unmute yourself or else write down in the chat box and we will get back to you. Anita Arora ma'am. हेलो। Yes. हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली आई वांट टू आस्क कि 9 वीक्स के बाद Your name अगर- please. अनीता अरोड़ा। Yeah, tell me ma'am. हाँ जी, मैंने अभी पूछा था कि मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड आई एम ऑन स्टीरॉइड्स फॉर 10 इयर्स। तो काफी डायबिटिक हूँ मैं, न्यूरोपैथी भी है मुझे और बीपी इशू भी थोड़ा है, तो मेडिसिन तो काफी ले रही हूँ। तो आई वांट टू ज्वाइन। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि 9 वीक्स के बाद भी हम इन टच रह सकते हैं? 100% मैम, हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। लोग इतना थक गए हैं, हॉस्पिटल, मेडिसिन, और कोई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। सो हम लोग इसलिए हम लोग हाँ जी, हाँ जी, इसलिए हम लोग स्वामी जी के द्वारा हम लोग रिवाइव कर रहे हैं अष्टांग चिकित्सा, कि आप का लाइफ को संभाल सको। जैसे अभी सुमन मैम ने बोला, सब लोगों ने हजारों चीज किया है बट उनको कहीं भी आराम नहीं मिल रहा है। मैं तो आजकल हम मूव लोग नहीं कर पा रही हूँ आर्थराइटिस की वजह से। मुझे कोरोना हो गया था, उसके बाद से मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ अगर कुछ ऐसे आपके प्रैक्टिस है जो? मैम, हम खुद प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं। आज भी हमारे बैच में 25 जन थे, तो सबका हैंड होल्डिंग होता है कि सबको एक एक पर्सनल अटेंशन देके आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबको हम लोग उस हिसाब से करवाते हैं। तो उसकी चिंता आप ना करें। आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 25 साल से लेके 75-80 तक के लोग हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अब इतने एज ग्रुप में के लोग हैं, तो ऑनलाइन सेशन है, तो हर व्यक्ति का हैंड होल्डिंग करना कितना जरूरी है, क्योंकि वो लोग सब ऑलरेडी पेन में हैं। हाँ तो जी, हाँ जी, नहीं मेडिसिन बहुत है मेरी भी, बहुत जगह मैंने आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरी थेरेपी, आई कांट टेल यू, but this is the last hope. Ma'am, this is a therapy which you are going to heal yourself with the guidance of Swami जी। ये आप खुद को हील कर रहे हैं, उसमें किसी और एक्सटर्नल इंटरवेंशन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो आप जितना मेहनत आप खुद के ऊपर करोगे, आप सोचो कल आपका उतना ही अच्छा होने वाला है। मुझे और कुछ भी नहीं बोलना है। कौन कौन से डेज है आपके? 2 दिन? देखिए, हमारा वात पित्त कफ, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अभी आप अगर वात में आते हैं तो मंडे है, पित्त में आते हैं तो ट्यूसडे है, कफ में आते हैं तो वेंसडे है। ओके, तो ओके, वो आप उस हिसाब से
वो सब हाँ जी। आपको बेसिकली हैंड आउट दिया जाएगा वेबिनार रूप में, उसमें आप लोग देख सकते हो। प्रैक्टिस सेशन सुबह 10 बजे होती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो हम खुद लेते हैं, तो उस हिसाब से। और हर एंड एवरी पर्सन इज इन्फॉर्म, किसी को कोई प्रॉब्लम है ज्वाइनिंग इन, सो वी हैव आवर एंटायर टीम वर्किंग ऑन इट सो दैट एवरीबडी ट्राइज टू अटेंड द क्लास और किसी को भी कोई इश्यूज ना हो। Okay, ma'am. Okay, thank you Hello. so much. Thank you. Thank you. Hello, Yes, ma'am. Thank I you. have a question. Yes, June ma'am. I want to know, say I'm working, so how will I attend the online classes? What time? Evening 6:30. It's not possible for Swamiji's session. See, one is a webinar and one is a practice. One is the main so- class, the mentors class, and one is the practice session, which I take. So you mean to say practice, at least we should be there, na? Yes. So that is what time in the evening? No, practice is morning 10 o'clock. Morning 10 o'clock. But what if we are not Yeah. able to make it? That is one-to-one. Ma'am, yes, one-to-one means like current batch, there are around 20 people. So each and every person, I make sure myself, because nobody else is doing it. I myself am taking the practice sessions. So I make sure each and every person does it properly, and that sort of hand holding is done. So you Then can what call is it the a personal suggestion? session. One day can't you adjust? It's just once a week, the practice session. Evening sessions, I That is- think you can attend. Evening is practice or morning is practice? No, morning is When is the practice, evening practice? is Swamiji's section. Morning 10 o'clock. Ma'am, So same just thing one with day me. in a week, ma'am, you have to adjust. That's it. Yeah, but Ma'am, same thing with me. Even I'm working, the morning it becomes very difficult for the practice because we will be in the office. Can it be adjusted in the evening batch? Why don't you leave your name and number, writing that working people? So we will see what to do. If there are a lot of people, then we'll try and adjust in the evening. So please yeah, leave your but name. ma'am, no. But if we have to take because you said 5,500 by tomorrow afternoon, how would we know that? Yes. No, don't worry. We'll get back to you. Don't worry at all, ma'am. That is our So you mean- responsibility. We'll get back to you. Yeah, but then this I mean to say is this practice we want to be there personally, and the other session you all will give the video recording, right? Ma'am, we want you to be there for the mentors as well as the practice session. हम लोग नहीं चाहते हैं आप कोई भी सेशन मिस करो, ओके? क्योंकि स्वामी जी का सेशन जो होता है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स भी जो हो रहा है आप डिस्कस कर कभी सकते होता हो है? उनके साथ. वो शाम कब को होता होती है, है? मंडे ट्यूसडे वेंसडे में एक दिन, जो भी आपके प्राण शक्ति डायग्नोसिस के हिसाब से आप जिस मॉड्यूल में जाते हो उस दिन होगा. आइदर इट्स मंडे ट्यूसडे और वेंसडे. That is in the evening 6, you mean to say? 6:30. And the practice is in the morning. So you will Practice let is us in know? the morning. Yes, I will definitely let you know. Sharika ma'am, also please leave your name and number. June ma'am, please leave your number and write down working so that we'll get back to you. Okay? Okay. Fine, Yes. ma'am. Thank you so much. Thank hello, you so much. hello, Archana ma'am. Yes, Rachna. हाँ रचना मैम, Yes, no मुझे रिव्यू मिल सकता है? हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, पर लोगों का रिव्यू मिल सकता है क्या हमें कि बाबा हमें ठीक हुआ है ऐसा? मैम अभी फिलहाल तो हमारे पास एज सच कोई टेस्टिमोनियल नहीं है और फॉल्स टेस्टिमनी हम लोग करते नहीं है, तो इसलिए अभी तो सिर्फ जो हमारा अस्तिका कुंभक का सिस्टर कंसर्न है वो डायबिटीज थायराइड से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, उनका टेस्टिमनी है. अभी हमारा कोई टेस्टिमनी नहीं है हाल फिलहाल, बट लोग फिर भी सीट्स लिमिटेड है, लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उससे अगर कुछ समझ सकते हैं तो आपके ऊपर है. आप अस्तिका कुंभक में जाके YouTube वीडियोस भी है स्वामी जी की, बहुत सारी ऐसी फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बनाया है, तो आप देख सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. Okay, thank you. Yes, anybody else? So many people have raised their hands.
but I don't know, they are not able to unmute themselves. Anil ji, मैम unmute. ये हेलो, हाँ मैम, मैं रितु Yes. बोल रही हूँ अहमदाबाद से। हाँ बोलिए मैम, नमस्ते। हाँ, ये मैम नमस्ते, ये इवनिंग का जो सेशन होगा 6:30 से, क्या टाइम लिमिट कितना होगा? मैम 1 घंटे नॉर्मली होता है, उसके बाद किसी का अगर क्वेश्चन आंसर है तो वो हमें स्वामी जी आंसर करते हैं। तो आपको अगर वैसे कोई जल्दी है तो यू कैन लीव द मीटिंग आफ्टर एन आवर, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा चलता है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, यस रविंद्र शर्मा जी, वीडियो अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, अपलोड हम लोग कर देंगे। Ma'am, one more question. By when Yes, will you sure. let us know approx? June ma'am, yeah, Anil ji will let them know by, I think, about Come working again for what? working people, they don't want it in the morning. So we said if there are Yeah, we're lot of working people, we'll revert back to you. we're working She's on. saying by when. Yeah, we are making arrangements to have practice classes in the evening also. So it might take a week or so. So don't worry, the June day- ma'am, about the discount. We will, since you've already contacted us, we'll keep that in mind. Don't worry. Also, we would want to know by when will it start, from Monday onwards, or when is the date which it will? It's when it starting will from start? Monday onwards. Monday. So you will let us know by tomorrow. Yes, we'll try by tomorrow. If not tomorrow, day after. But you don't worry about the early bird discount. That's okay. Since you have, it's a special case, we will definitely consider. Yes, Anil ji, am I right? Yes, yes. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yes, Renu's iPhone, Seema ma'am. Ma'am, same would apply for me also, working issue. Yes, yes. सब लोग जो लोग working है अपना number लिख के जाएं और working लिख दे, so we'll get back to you. Don't worry. That will be considered, right? Thank you. Yes, 100%, ma'am. Don't worry. Yeah. Yes. okay. So if there's no other question, we come to the end of the session. And अगर कोई भी question और बाकी है तो please आप लोग लिख दे webinar group में, and we will get back to you ASAP. Thank you so much. Namaste. Good night. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. And the video will be uploaded in some time once the processing is done. The video of today. Yes, today's talk? webinar. Today's webinar. That's will for be people upload- who've had some net connection or they've not been able to see due to other engagements, they'll be able to see. You will be sending it on the WhatsApp group only, na? Yes, 100%. Okay, thank you. Okay, thank you.